मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको बच्चों के रोने की आवाज़ आए, खेलने की आवाज़ आए, कूदने की आवाज़ आए तो प्लीज़ हमें माफ़ कर देना, क्योंकि जो हमारा ऑफिस है जिस बिल्डिंग में वहाँ पे एक छोटे बच्चों का स्कूल खुल गया, तो हम सब बच्चे थे, समझ के सब माफ़ कर देंगे। लेकिन बात आज बच्चों की नहीं है, बात हम करेंगे क्रिस बमस्टेड की। क्रिस बमस्टेड जिन लोगों को नहीं पता, इज लाइक 3 टाइम्स क्लासिक फिजिक मिस्टर ओलंपिया। जो लोग जिम जाते हैं डेफिनेटली उन्होंने इनकी शक्ल कहीं ना कहीं किसी मीम में, किसी वीडियो में ज़रूर देखी होगी। तो हम डिस्कस करेंगे क्रिस बमस्टेड की आज की बल्किंग डाइट। अब आजकल के टाइम में जैसे अगर कोई बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्टेड है या किसी टाइप पे इंटरेस्टेड है तो लोगों की डाइट्स देखना बहुत आसान है, लेकिन डाइट कॉपी करना इज नॉट अ ग्रेट आइडिया। तो हम आज देखेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या है उस डाइट के, हम कौन से अप्लाई कर सकते हैं और कौन से नहीं अप्लाई कर सकते। और एक बात हमेशा आप ध्यान रखें, कभी भी कोई एथलीट होता है, लाइक एक एथलीट ही इज लाइक ग्रेट नॉट बिकॉज इज नोज एवरीथिंग, क्योंकि उनके जेनेटिक्स बहुत अच्छे होते हैं, उनकी वर्क एथिक बहुत कमाल की होती है, और तभी उनके कोच भी होते हैं। नहीं एज अ कोच, इनके कोच हैं इयन विलेयर, जो कि उनके ब्रदर इन लॉ भी। तो विदाउट मच अडू आइए शुरू करते हैं क्रिस बमस्टेड की 5000 कैलोरीज बल्किंग मील प्लान, और कुछ टिप्पणी करते हैं, कुछ सीखते हैं, और चीजें मतलब वो सीखनी क्या है ये भी देखनी है। What is up, YouTube? It's been a minute since I've been in my kitchen, so all Davey Dan did. I just weighed myself right now of 255 pounds, and that's a true weight. I was a little bit more the last few days because I was like. करंटली इस टाइम पे 255 पाउंड, विच इज इन माई ओपिनियन 115 किलो, 115-16 किलो के आसपास हैं। तो इनकी सारी कैलोरी इसी के हिसाब से होंगी। तो जस्ट बिकॉज अगर आप 75 किलोज हैं और अगर आप किसी 115 किलो के इंसान की डाइट कॉपी कर रहे हैं, आई डोंट नीड टू टेल यू कि वो सही नहीं होगा। Eat a little bit, was a little bloated, holding on some water, but I got a massage and just flushed it all out. So today with 255 pounds, I'm up like 15 pounds from whenever. Still got like 10 months until the Olympia, and last year my biggest weight was like 264. So 10 more pounds and I'll be the biggest I've ever been. Bulking season, but baby. to the food because I'm hungry and a little bit late. So typically I've still been doing pancakes almost every morning, but 2 times a week I have this concoction right here, this shake I'm about to show you. But right now I dropped Courtney off at the airport like 5 a.m., came back, fell back asleep, and I just don't feel like making pancakes right now. So it's gonna be the shake today. It's super simple, nothing crazy, literally just blending up protein, oats, and some almond butter, and then with that I eat a bagel. I could do more oats in the shake technically, but if you put like 120 grams. अगर आप देखें इनके जो ओट्स हैं ये रोल्ड ओट्स हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता, वी हैव रोल्ड ओट्स, वी हैव स्टील कट ओट्स। तो जो स्टील कट ओट्स होते हैं वो दलिये की तरह होते हैं, इंडिया में उतने कॉमन नहीं मिलते, लेकिन रोल्ड ओट्स हमारे क्विकर ओट्स रोल्ड ओट्स होते हैं, तो ये पहले से कुक्ड होते हैं, यू डोंट नीड टू कुक देम अगेन, तो डायरेक्टली शेक में डाले जा सकते हैं। In a shake and drink it. It just tastes like you're drinking sand, and it's not that good. But you can get away with like 60 to 70. And the trick that I like to do is if you put ice, or even better if you put fruit. I just didn't really feel like having a fruit smoothie. If you put fruit or ice or something that's going to add maybe slight texture to it, you're less likely to feel the oats. Right in front of me. You're less likely to feel the oats in the drink, and it'll be easier to get down. So I have 72 grams of oats. I do 2 scoops of protein. I typically either go with chocolate or cookies and cream for this shake. Going with cookies and cream today. I do a scoop of fiber. So I do 1 scoop of fiber. The total fiber in this is 7 grams. And I'm also getting a good amount from the oats. So beautiful way to start the day with about. ओके सो अभी तक इन्होंने क्या किया है, ओट्स डाल दिए हैं, जैसे मैंने बोला प्री कुक्ड होते हैं, यू डोंट नीड टू कुक देम। उसके बाद यू हैव 2 स्कूप्स ऑफ वे प्रोटीन। अब एक चीज़ है अबाउट पीपल हु कम्पीट, वो ये कि जब व्हेन समबडी इज ऑन पीईडीज, ऑफ कोर्स क्रिस इज ऑन पीईडीज, क्योंकि ऐसे ओलंपिया में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, कम्पीट नहीं कर सकते, उस टाइम पे जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है वैसे ही बहुत एलिवेटेड होता है। तो कहा यह जाता है कि आपको हो सकता है उतने प्रोटीन की जरूरत ना पड़े, अगेन दैट इज लिटिल डिबेटेबल। लेकिन अभी जैसे अगर 2 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन इन द सेम शेक डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस, पर आर जो आपका प्रोटीन एब्जॉर्प्शन होता है वो इज लाइक व्हाट 8 to 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर आर। लेकिन जब आप बहुत सारा बड़ा शेक बनाते हैं वो थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन स्टिल 1 to 5 पॉइंट मतलब नॉर्मल लोगों के लिए क्रिस में भी कर सकते हैं क्योंकि बिग गाय और इनका शेक बहुत बड़ा है। लेकिन मोस्टली कभी भी 2 स्कूप वे मत यूज कीजिए, खासकर पोस्ट वर्कआउट। 1 स्कूप ऑफ वे इज परफेक्टली इनफ फॉर मोस्ट पीपल। और हाँ, एक और बात थी, इन्होंने फाइबर सप्लीमेंट भाई साहब आपका इससे बोल होता है सीलियम हस्क की जो फाइबर सप्लीमेंट, ठीक है, सिंपल 13 रुपए का छोटा सैशे आता है, वो यूज कर सकते हैं। Goes faster nice and well, and then I add in. I'm almost out of almond butter. This is like the scraps. If you look in our cupboard over in the corner where अब देखो आलमंड बटर यूज कर रहे हैं, पीनट बटर नहीं यूज कर रहे हैं, बिकॉज पीनट बटर इज नॉट वेरी हेल्दी। इट्स लाइक एक सर्विंग दिन की जस्ट फाइन, लेकिन वी हैव समथिंग कॉल्ड ओमेगा 6 एसिड्स, फैटी एसिड्स। तो ओमेगा 6 फैटी एसिड्स में पीनट बटर बहुत ज्यादा रिच होती है, तो वो इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करती है। हम ओमेगा 3 क्यों खाते हैं? ताकि ओमेगा 3 बाई ओमेगा 6 का बैलेंस हमारे फेवर में होगा तो इन्फ्लेमेशन कम होगी। अब आलमंड बटर नहीं है, डायरेक्टली बादाम डालो ना, 10 बादाम है, यू गुड टू गो। keep our almond butter. We probably have
I don't know, at least 10 at this point. Almond butters that look like this, because Courtney, I mean, worse than this. Courtney only likes it when they're like smooth at the top and you can like drizzle it onto her food. So when it gets some of this little scraps, she leaves it, and I just usually use it for shakes so it doesn't go to waste. But that's how we eat almond butter in this house. I usually do 15 grams. That's 19, so bonus 4 grams today. 19 grams of almond butter, and then I'm going to blend this up, and I'm going to toast the bagel, and I'm going to put on some ghee butter. Oh, ghee butter. You can eat grass-fed butter as well. This is grass-fed clarified ghee butter, which means they've taken the lactose out of it and put it through a process to try and kind of get rid of some of the shit in it. So it's supposed to be a little healthier, but I don't know. It makes I like enjoy it better. It has a little bit of a different taste to it. This one also has added pink Himalayan salt to it, so it tastes even better. Alright, so quick and easy breakfast. I literally think I made that in like 11 minutes. So if you ever want to get out the door and get in a shit ton of, I mean, I haven't eaten yet, but if you want to get out the door quick, get in a bunch of calories, this is a good way to do it. Also, I've been taking this glucose product twice a day, once with ओके तो अब ग्लूकोज प्रोडक्ट की बात करते हैं क्रिस। तो ग्लूकोज प्रोडक्ट में नॉर्मली आपका बर्बरीन होता है, यू हैव क्रोमियम पिकोलिनेट, यू हैव इस टाइप के सब्सटेंसेस, और ये क्या करते हैं, ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर करते हैं। और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी जितनी अच्छी होगी, यू कैन पुट ऑन लीन मसल मास बेटर, और कम से कम फैट डिपॉजिट करके। और जिन लोगों की सेंसिटिविटी बहुत खराब हो जाती है, टाइप 2 डायबिटीज एक्चुअली वही केस होता है। इन केस आपकी फैमिली किसी को भी टाइप 2 डायबिटीज है, इट्स 100% रिवर्सिबल इन लाइक 3 to 4 months। गिव अस अ शॉट, मतलब कॉन्टैक्ट कीजिए, विल मोर देन हैप्पी टू हेल्प। तो लेकिन फॉर बॉडी बिल्डिंग पर्पसेस एक और जो बहुत सस्ती चीज है जो यूज कर सकते हैं उसी शेक में, वो आपका दालचीनी है। तो दालचीनी जो है इज एन अमेजिंग, आई वुड से, स्पाइस फॉर इंप्रूविंग इंसुलिन सेंसिटिविटी। लेकिन अगर मेरे को कोई एक चीज पिक करनी हो जो सबसे बेस्ट चीज है सेंसिटिविटी बेटर करने के लिए, वो फास्टिंग है। और जब भी जिम जाते हैं तो हम लोग मोस्टली 5 से 6 दिन जिम जाते हैं, और उसके बाद 1 या 2 दिन रेस्ट लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है मसल्स को रेस्ट करने की जरूरत है। लेकिन व्हाट अबाउट योर डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको भी तो रेस्ट करने की जरूरत है। तो जब अगर आप एक 24 आवर्स का कंप्लीट फास्ट देते हैं हफ्ते में बल्किंग के टाइम पे, तो उससे आपकी सेंसिटिविटी रिसेट हो जाती है, आपके सिस्टम को थोड़ा आराम मिलता है। तो वो बहुत बढ़िया चीज है। और एक और चीज जो कर सकते हो लाइक सम फॉर्म ऑफ कार्डियो, लाइक सुबह उठ के कार्डियो करना शुरू किया, भूसा बेटर लगेगी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बेटर होगा, और आपकी सेंसिटिविटी उससे भी बेटर होगी। तो ये दोनों चीजें हेल्प कर सकती है। अब एक और चीज अगर आप देखेंगे, breakfast, and once when I have like a pasta meal post workout or something, or if I'm not training that day and I don't have that huge meal, I probably won't have it. You can also buy berberine, chromium, and a bunch of stuff like that separately and put it together. But this is like a stacked formula of like a bunch of vitamins, chromium, berberine as well, it has cinnamon extract, a bunch of other stuff in it as well to help you kind of digest and shuttle carbs where you want them to be. So it just helps in the off season if you're eating a lot of carbs. But aside from that, this is breakfast. I got 2 scoops of protein, 70 grams of oats, 19 grams of almond butter. I got 1.5 bagels covered in ghee butter. And अब घी बटर और घी बटर क्लैरिफाइड बटर, ये हमारा घी है, तो डोंट नीड टू लाइक कॉम्प्लिकेट दिस। घी इज लाइक रियली गुड। देखिए क्रिस जैसे बॉडी बिल्डर घी खा रहे हैं, तो आपको भी तो खाना चाहिए। हमें लगता है यार वेस्ट में कोई खाता नहीं है, उसी से कॉपी करोगे। कॉपी करने से बड़ा यहाँ पे ब्रेकफास्ट में पता क्या चीज आएगी लोगों के, बेगल। अब कुछ फैंसी बेकरीज हैं हमारे मेट्रोज में जहाँ पे बेगल्स मिलते हैं, जबरदस्ती महंगी चीजें, क्या करनी है। अल्टीमेटली प्रोडक्ट को मत देखिए, वो प्रोडक्ट जो आपके शरीर में जाएगा टूट के बनता क्या उसको देखिए, है क्या, कार्बोहाइड्रेट। सिंपल आपकी जो ब्रेड है सिमिलर काम करेगी, ब्रेड के ऊपर घी लगाइए, बटर लगाइए, सेम ब्रेकफास्ट तैयार हो गया। ठीक है, आगे चले। And I think that's all that's in here. So this whole thing, super easy to eat, is 1,344 calories. So great way to mash down in the morning, break that fast, and try and get huge. All right, I don't eat it every day, but bagels are going to be not an option if you want to options where you can will cycle through a normal line at these events. But you want me to sign something? Of certified black Angus steak and 2 cups of rice. So I don't know how accurate the reading is on here, but it says 890 calories for this meal. So not bad way to get in a meal. But I'm gonna throw this in a glass dish so I'm not warming up plastic all the time. तो मील 2 में क्या है, यू हैव अ कार्ब सोर्स विच इज व्हाइट राइस, और एक यू हैव अ मीट सोर्स, ये सम स्टेक इनसाइड। अब एक चीज ध्यान रखें, जब भी आप बल्किंग की मील प्रिपेयर कर रहे हैं तो बल्क में प्रिपेयर कीजिए। एटलीस्ट 2 मील्स तो एक बार में करने चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे ही हैज सम काइंड ऑफ मीट, सो उस मीट को 2 मील्स के लिए बना लीजिए। ही हैज सम राइस, तो आप उस राइस को 2 मील्स के लिए बना लीजिए। लेकिन ब्राउन राइस मत यूज कीजिए बल्किंग में, ब्राउन राइस आपको ब्लोट करेगा एंड नॉट गुड व्हेन यू वांट टू ईट अ लॉट ऑफ राइस। आल्सो यू डोंट नीड सम फैंसी जैस्मिन राइस समथिंग, आपके बासमती राइस मस्त है, आराम से खाइए। Gonna heat this up and then an appointment. The meal high protein. Our bonding time, so it's just me and her for a while. We're gonna have some crazy parties, have fun, so it's gonna be good. But meal number 3 is 6 ounces of chicken and 2 cups of rice, so similar to my last meal, but chicken instead of beef. I like to have chicken and rice for the gym usually because it's just the most basic meal ever and it's just easy to digest. MegaFit says this is 760 calories in here, so I'm hoping that's right. But I'm gonna put this down, probably put some hot buffalo sauce on it just for a little bit of flavor, a little bit of kick.
और हम खासकर जब ये वीडियोस देखते हैं यहाँ पे यूएस या कनाडा में सॉसेस के ऑप्शन, खासकर यूएस में सॉसेस के ऑप्शन बहुत सारे हैं, खासकर लो कैलोरी सॉसेस, देन वी काइंड ऑफ स्ट्रगल की हमें भी चाहिए लो कैलोरी सॉसेस। आपको लो कैलोरी सॉसेस चाहिए, मैं आपको बताता हूँ क्या है लो कैलोरी सॉसेस। हमारी चटनियाँ सबसे बेस्ट चीज है। इन लो कैलोरी सॉसेस की प्रॉब्लम भी है, यहाँ पे बहुत सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी डाले जाते हैं, बाकी चीजें भी होती हैं, लेकिन हमारी चटनियों में ये तो कैलोरी ऑलमोस्ट ना के बराबर और आपके डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। तो बल्किंग कर रहे हो भाई, आपको तो चाहिए स्वाद का स्वाद, हेल्थ की हेल्थ, और क्या चाहिए, ठीक है ना। तो चटनी फॉर सॉस लाइक एनी डे एवरी डे। आगे मूव करें। It's a little spicy than I would have liked, but it still tastes amazing. But I'm gonna eat this, throw down some pre-workout, probably some 3-peat because it's a go flavor, and then I'm gonna head to the gym, and I'll see you guys after the gym for my post-workout meal, whatever the hell it's gonna be. All right, so post-workout meal. This is another trade secret. I learned this on accident because I was eating sweet potato on prep, and I was like, why the fuck is it like this much sweet potato for the amount of calories I should be eating? So I stopped baking it. But if you bake or air fry sweet potato, the volume of it becomes like a tenth of what it is before cooking it. I'm not really making much sense right now. I'm starving. Pretty much on prep, I boil my sweet potato, so it's like a little more voluminous. But if you cut up the sweet potato into like nice little bits, like this, almost like little fries, and then you cover it in oil on the pan, more calories as well, and then you bake the shit out of it for like an hour to the point where I like. सो दिस एन एक्सलेंट टिप जो कृष्ण शेयर किया। लेकिन इससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जिनको गट का इशू होता है, लाइक आईबीएस होता है, बाकी चीज होती है, दे काइंड ऑफ आस्क मी क्वेश्चंस कि हम बल्किंग कैसे करें। तो आपका आंसर, आप बल्किंग नहीं कर सकते। यू नीड टू ट्रीट योर गट फर्स्ट इन केस यू इंटरेस्टेड। वी हैव लाइक अ प्रॉपर प्रोग्राम जिसमें बहुत सारे लोग ठीक हो गए। एक बार गट ठीक होगा फिर आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते, ठीक है। उससे पहले बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लाइक वही बात होगी, अगर आपकी बाजू टूटी हुई है तो आपको रेस्ट देना जरूरी है, राइट। एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो स्पीकिंग अबाउट दिस मील, इस मील में क्या है, एक बड़ा अच्छा पॉइंट क्रिस बनाते हैं, वो ये कि जैसे अगर स्वीट पोटैटो बल्किंग के टाइम पे खाओ तो बॉईल करके खाओ, उससे क्या होगा, बहुत वॉल्यूमिनस फील होगा। लेकिन कटिंग के टाइम खा रहे हो उसको छोटे छोटे फ्राइज काट के खाओ, उनमें थोड़ा ऑयल लगाओ और उसको जैसे एयर फ्रायर है उसमें डाल दो 1 घंटे के लिए या जितना भी आपको चाहिए, तो बहुत छोटे रह जाएंगे और बहुत सारा स्वीट पोटैटो खा सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारी कैलोरीज आ सकती हैं। और एक और टिप ये मैं बहुत सारे क्लाइंट से यूज करता हूँ, ये क्या, 2 आप कार्ब्स मिक्स कर दो। अगर एक बहुत हैवी कार्ब मील है, जैसे इसमें 100-150 ग्राम कार्ब्स आपको यूज करने हैं, तो उन्होंने स्वीट पोटैटो ला दिया और थोड़ा यू हैव बनाना, तो दोनों को मिक्स कर दीजिए। साथ में एक प्रोटीन सोर्स तो आपका टर्की ब्रेस्ट है ही है, तो ऑल इन ऑल एक कमाल का post-workout meal. All right, so meal number 5. I completely started eating this and forgot I was doing a full day of eating. That's how horrible of a YouTuber I am. This next meal is, I blasted back with sweet potato because it was delicious. A little bit less this time. I had 300 grams. Okay, इस मील में he has ground beef, we have 300 grams sweet potato और half avocado. So again you have a protein source, a carb source जिसमें sweet potato है, इसमें आप राइस भी यूज कर सकते हैं because in India हमें चिकन राइस, फिश राइस टाइप खाने बहुत मजा आता है। उसके बाद you have half avocado. बहुत सारे लोगों को लगता है avocado is like super healthy, it is without a doubt. लेकिन एक और चीज है, और मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ about my nutrition philosophy, आप फॉलो कर सकते हैं if it makes sense. If it doesn't, you cannot. I mean you don't need to. It's local and seasonal. Avocado नए आए हैं और बहुत महंगे क्यों? क्योंकि कोई किसी भी चीज की कॉस्ट जो है उसकी क्वालिटी डिटरमाइन नहीं करती, डिमांड सप्लाई करती है। डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि हम वीडियोस देखते जा रहे हैं, सप्लाई भी उतनी है नहीं, तो इसलिए चीज महंगी है। तो अगर आपको हेल्दी फैट्स चाहिए, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, आमंड्स, वॉलनट्स, कैश्यूज, ये सारी चीजें है ना भाई। तो इसी मील में अगर आपको थोड़ा इंडियनाइज वर्जन करना होता, चिकन, स्वीट पोटैटो और या स्वीट पोटैटो चावल भी डाल दो और साथ में एवोकाडो की जगह ये सब चीजें ऑप्शन डाल दो, मस्त ऑप्शन बनेगा। और बेटर माइक्रोज भी मिल सकते हैं, ये काफी हद तक सिमिलर माइक्रोज मिल सकते हैं। तो मैक्रोज माइक्रोज दोनों बराबर। तो मैंने पहले बात की ना, प्रिंसिपल्स देखेंगे, एग्जैक्ट चीज सेम चीज कॉपी मत कीजिए, नुकसान में रहेगी। अगला मील देखते हैं क्या। At that point, not slow your digestion at all. Not that it's like that crucial because I was eating so close to my workout anyways. But that's just my method of doing things. I like having fast before bed too, so it keeps me sustained longer. After this, I'm probably going to throw down like a shake or something. I normally have 2 shakes a day, and I'm probably going to finish the day with one of those. So I'm going to eat this, finish this Connie episode, and I'll catch you guys for the final snap. All right, so meal number 6, if you want to call it a meal, we are back right where we started with another shake. I have 80 grams of oats in there, taking this GI product before bed and Revive, and I also throw glutamine in here every night. Glutamine does. अब लास्ट शेक में ही हैज ओट्स, एक स्कूप वे प्रोटीन है, उसका कुछ आमंड बटर, अगेन नो पीनट बटर विच इज गुड, आप प्रॉपर पीनट्स आमंड यूज कर सकते हो। और 2 चीजें वो डालते हैं, यू हैव अ जीआई प्रोडक्ट आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए। तो उसके बाद एक और चीजें करते हैं, ग्लूटामीन डालते हैं। देखिए ग्लूटामीन रिकवरी के लिए हमारे पास वी डोंट हैव अ क्लियर आंसर, लेकिन ज्यादा एविडेंस ये है कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ग्लूटामीन फॉर गट इज डेफिनेटली गुड। लेकिन अगर गट में इश्यूज हैं, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा, बिकॉज़ आई वर्कड अ लॉट ऑफ गट पीपल जिनको गट के इश्यूज हैं, स्टिल आई एम वर्किंग, ग्लूटामीन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ज्यादा
अच्छी चीज है। अब अगर आप देखोगे क्रिस के हिसाब से, क्रिस के लेवल के हिसाब से इनके दिन का 250-300 से ज्यादा प्रोटीन नहीं होता। सो इज लाइक ऑलमोस्ट स्टिकिंग टू 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ हिज बॉडी वेट। और इसका एक और रीजन है, क्योंकि जो क्रिस को एक ऑटोइम्यून डिजीज है, किडनी डिजीज है, और इसके ऐसे मतलब एक टाइप से इनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि बहुत सारा प्रोटीन नहीं डाल रहे, क्योंकि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म का जो वेस्ट होता है वो यूरिया होता है, और वो आपकी किडनी पे स्ट्रेस डाल सकता है अगर बहुत सारा प्रोटीन हो। तो अगर क्रिस जैसे इंसान हु इज लाइक अ टॉप टियर ओलंपियन ऑलमोस्ट 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ हिज बॉडी वेट पे इतने हाई लेवल पे compete कर सकते हैं, तो व्हाट मेक्स यू थिंक कि आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है? खासकर जब लोग compete करना शुरू करते हैं उनको लगता है कि मोर प्रोटीन इज बेटर। नहीं, प्रोटीन के बारे में आप सिमिलर चीज यूज कीजिए कि आप देखिए कि आपके लिए ऑप्टिमल डोसेज क्या है। बहुत ज्यादा करेंगे तो किडनी पे थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, अगर इन पर्टिकुलर कंपैरेटिव बॉडी बिल्डर है, क्योंकि आपको पता है कंपैरेटिव बॉडी बिल्डर की डाइट भी ज्यादा होती है, बाकी सप्लीमेंट्स तो है ही हैं, पीईडीज भी हैं। तो यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ एवरीथिंग, मोर इजंट ऑलवेज बेटर। सो गाइस, आई होप इस वीडियो में आपको सीखने कुछ मिला तो गिव अस अ थम्स अप। थम्स डाउन का ऑप्शन तो वैसे भी चला गया। तो I'll see you in the next one. Till then, bye-bye.